वेलकम टू स्पार्क क्लासेस बालेश्वर पिलाने प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कस करथिले अबाउट न्यूक्लिएशन तो न्यूक्लिएशन रा जो रिएक्शन थिला ए रिएक्शन मन रखि दबो जे n डैश इक्वल टू NaBA माइनस NbVb अपन Ba प्लस Bb ये n डैश इंडिकेट करिवो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को एंड n डैश इक्वल टू NbVb माइनस NaVa अपन Va प्लस Vb ये इंडिकेट करिवो OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर तो ये थिला न्यूक्लिएशन कांसेप्ट आमे प्रीवियस क्लास रे पढुथिले तो चलो तो आमे कंसंट्रेशन रा शेष पार्ट आमे पढिबा कंसंट्रेशन फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन बहुत लंबा थिला बहुत न्यूमेरिकल थिला इंटररिलेशनशिप बहुत आस्थिला लाई अच्छा चलो तो आमे पढिबा पार्ट्स पर मिलियन मीन्स ppm parts per million means ppm parts per million first thing की parts per million और parts per billion ये जो दीटा concentration term are used when solute is present in trace amount in solution जदि solute टा solution trace amount रही तो ये concentration को हमें use करूँ है स्पेसिफिकली इन आवर डेली लाइफ रे में जदि मेडिसिन रे इंग्रेडिएंट्स को हमें यूज करू पीपीएम बा पीपीबी टर्म रे बा गैस को हमें एक्सप्रेस करू पीपीएम बा पीपीबी टर्म रे लाइक दिस बा ड्रिंकिंग वाटर इंग्रेडिएंट्स को हमें यूज करू पीपीएम बा पीपीबी रे सो पार्ट्स पर मिलियन मींस व्हाट मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम divided by mass of a solution in gram into 10 to the power 6 that is ppm parts per million ppm कौन आसिला mass of a solute in gram divided mass of a solution in gram into 10 to the power 6 that is ppm suppose आमे एक क्वेश्चन करिबा हलै come to question जे let 7.5 gram write down 7.5 gram ground water 7.5 gram ground water contains 18 microgram of Zn plus 2 ion. Find out the concentration of Zn plus 2 ions in ppm. Find out the concentration of Zn plus 2 ions in ppm. So देखो here is एटी देखो एटी solute means Zn plus 2 ions तो mass of solute is given 18 into microgram convert into gram 18 into 10 to the power minus 6 18 into 10 to the power minus 6 so ppm of Zn plus 2 18 into 10 to the power minus 6 gram divided by 7.5 gram into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 so gram cancel here so 18 upon 7.5 yes or no because 10 to the power minus 10 to the 6 equal to 1 so 18 upon 10 to the power 18 by 7.5 2 point yes 18 divide 7.5 2.4 so the 2.4 ppm Zn plus 2 ions present in solution okay then come to another question suppose the solution
the solution having drop has concentration as high ppm से कला गोटे ड्रग सॉल्यूशन गोटे मेडिसिन टे गोटे ड्रग सॉल्यूशन तार कंसंट्रेशन से रखी केते 5 ppm mass of solution is this 10 gram question कौन अछि mass of question calculate the mass of a drug in milligram calculate the it solute के drug calculate the mass of a drug in milligram कला मिलीग्राम रे कैलकुलेट करो so the solution having drug has concentration as 5 ppm mass of solution is 10 gram calculate the mass of drug in milligram ताले मिलीग्राम रे बाहर करो इट वेरी 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 सिंपल व्हाट नाउ से ppm केते अछि रे बाबू 5 तो mass of a solute in gram mass of solute in gram yes or no mass of solute in gram into mass of solution into 10 to the power 6 तो mass of solute हम पाई क्वेश्चन मार्क सर x धरिनियो mass of solution केते अछि 10 gram into केते हो 10 to the power 6 so the this implies that so x equal to 5 by 10 to the power 5 by 10 to the power minus 5 yes or no एतिकी ग्राम yes but my question की हला मिलीग्राम so how to convert मिलीग्राम into ग्राम रे अछि हम मिलीग्राम रे बाहर करबा केता आसीबो into ग्राम को मिलीग्राम करो 10 to the minus 3 ग्राम को मिलीग्राम करबो हला ये into 10 to the power minus 3 so multiply so 5 into 10 to the power minus 5 10 to the power कते जीवो मिलीग्राम अछि परा 10 to 3 सॉरी हां 5 in 10 to minus 2 milligram yes 10 to 3 हला ग्राम और मिलीग्राम हले 10 to 3 मिलीग्राम और ग्राम हले 10 to power minus 2 yes तो आंसर केते गेला 0.05 सो दैट ये बहुत सिंपल छला चलो वर्तमान में कंप्लीटली स्टार्ट करबा न्यू कांसेप्ट अबाउट सॉल्युबिलिटी चलो सॉल्युबिलिटी स्टार्ट द देखो पहला वाले कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन चैप्टर रे फर्स्ट जो पार्ट हमर थिला अबाउट कंसंट्रेशन ताको में सक्सेसफुली कंप्लीट कले बहुत होची कंसंट्रेशन टर्म थिला बहुत ही इंटर रिलेशनशिप थिला न्यूमेरिकल हम कलु तो वर्तमान हम स्टार्ट करबा सॉल्युबिलिटी अनदर होची प्लॉट ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर बहुत बहुत इंपोर्टेंट exactly what is the meaning of a solubility solubility may be defined as mass of a substance or mass of a solute in a gram dissolved in unit volume of particular solvent at given temperature and pressure to make a saturated solution ये होची solubility होची right definition जे आमे गोटे पर्टिकुलर सॉल्वेंट रे गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रे केते अमाउंट रो सॉल्यूट को डिसॉल्व कले जहा गोटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मेक करबो बा फॉर्मेशन करबो सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन रे से आउ
एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजोल्व करबा पई अलाउ करबो नहीं हलै ताको हम कोन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन नॉर्मली आमे से अछि अलाउ करबो नहीं सो दैट सॉल्यूशन यू कैन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन ताले सॉल्युबिलिटी रो मीनिंग असला कि solubility may be defined as amount of a substance or you can say amount of a solute like amount of a solute से solid हो कि liquid हो कि gas हो amount of solute in gram dissolved in particular solvent at given temperature and pressure to make saturated solution that is you can say solubility लिखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट हालांकि इन यूनिट वॉल्यूम अच्छा ये काम कर ये लिखिए डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज यू कैन से सॉल्युबिलिटी ये टर्म को हम कौन कहूचे सॉल्युबिलिटी बट रिमेंबर दैट जे जदि सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट तुमको कहा जाए व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट may be defined as 1 ml or 1 centimeter cube of gas is dissolved in 1 centimeter cube of solvent to make saturated solution at given temperature pressure ताको हम कहू solubility coefficient ताको कोन कहा जाए solubility coefficient गैस केस रे गोटे एक्स्ट्रा वर्डिंग आसे solubility coefficient हैला कि तो solubility coefficient होची आसिले कोन लिखिबा solubility coefficient हैला कि सिलेबस रे नाही बट जानि था solubility coefficient कि 1 centimeter cube gas is dissolved in 1 centimeter cube solvent to make saturated solution at a given temperature and pressure okay that is you can say solubility coefficient पिला माने आमर एठी पॉइंट सिलेबस की या जे आमे अब चर्चा रखिबा जे व्हाट फैक्टर्स इन्वॉल्व व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूटा जेतो लिक्विड सॉल्वेंट रे डिजोल्व करछि कोन कोन फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि तापर हमें देखिबा तापर हमें पढ़िबा हला कि गैस केस रे तो हम सिलेबस रे जोड़ा इंपोर्टेंस अछि तो देखो कोन कहला अछि तो बर्तन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट बहुत बढ़िया कथा लिक्विड क्लियर फास्ट डिस्कस करबा पिला माने कौन कौन फैक्टर डिपेंड करबो लगी देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स मींस nature of a solute as well as nature of solvent and second thing temperature is this temperature तो कौन कहला the solubility of a solute solid solute dissolved in
dissolved in liquid solvent depends on following factors come to first nature of solute and nature of solvent. Okay, nature of solute and nature of solvent. Very simple. पिलाने आमे तो 11th क्लास रे बॉन्डिंग चैप्टर पढुतले बॉन्डिंग चैप्टर रे आमे सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड बा कोवलेंट कंपाउंड रो प्रॉपर्टी रे आमे गोटे कांसेप्ट पढुतले जे जदि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both have similar type of nature then the extent of solubility increases. जाको हम कहते like diesel like principle means मन करा जाओ सॉल्यूट मो पाखर अछि आयोनिक सॉल्यूट अछि आ सॉल्वेंट मो पाखर अछि पोलर नो डाउट द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस मन करो तो मो कहे कथा आयोनिक सॉल्यूट is dissolved in polar solvent like water in more extensively तो आम सिंपल कथा नबा मन कर NaCl सोडियम क्लोराइड को मु डिजल करबी वाटर रे सेम सोडियम क्लोराइड को मु डिजल करबी अल्कोहल रे किबा केरोसिन रे बा पेट्रोल रे बा डीजल रे बा CCl4 रे नॉन पोलर सॉल्वेंट रे तो देख द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी कोटी अधिक थिबो वाटर रे हला कि तो मो कहबा कथा होसी द आयोनिक सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन polar solvent in more extensively and covalent solute is dissolved covalent solute is dissolved अवश्य तो चौको सर वाटर कौन covalent solute dissolved yes हुए but covalent solute but maximum covalent solute is dissolved in non-polar solvent कौन से होची non-polar covalent solute is dissolved होची in non-polar solvent in more extent अच्छा पिला माने polar solvent non-polar solvent how can you determine the nature of solvent either polar or non-polar these are depends upon dipole moment chemical bonding concept dipole moment net dipole moment determines the nature of solvent whether polar or non-polar if the dipole moment value non equal to 0 polar or equal to 0 that is non-polar non equal to 0 नॉन जीरो वैल्यू आसीगला ताले सेटा ऑब्वियसली पोलर जीरो आसीगला तो एटा नॉन पोलर जीरो तुमरो कार्बन डाइसल्फाइड तुमरो होचे बेंजीन तुमरो CCl4 माने जीरो डाइपोल मोमेंट तो ये सॉल्वेंट को हम कहबा नॉन पोलर सॉल्वेंट बट वाटर नो डाउट वाटर होचे डेस तार डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट सो वाटर होचे पोलर सॉल्वेंट तो नेचर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट थिला आयनिक सॉलिड इज डिजॉल्व्ड होसी इन पोलर सॉल्वेंट होसी मोर एक्सटेंसिव तो इंटरेस्टिंग कथा होसी कोन वाटर पाखर गोटे एमिते को एबिलिटी होसी वाटर हैज एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ अ सॉल्यूट एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जेते सॉल्वेंट होसी तो वाटर रो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सब तो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होसी dielectric constant is the ability of a solvent to break the presence of a bond in solute पाखरे जो बॉन्ड गुडा रही से आयनिक बॉन्ड हो कि कोवलेंट बॉन्ड हो सेटा को ब्रेक करिबार जो कैपेबिलिटी अछि जो सॉल्वेंट रे सॉल्वेंट रे से कैपेबिलिटी को एबिलिटी को हमें कोन को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वाटर रे प्राय आयनिक सॉल्यूट कोवलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाती
तो वाटर से गोटे एक्सेलेंट सॉल्वेंट हिसाब से आम नौ तो कह कथा जो आयोनिक सॉल्यूटटा मनकर NaCl जो पानी रे डिजल बाबा स्टार्ट हो जाए तो नो डाउट तो NaCl कौन हुए आयन गुड़िक सेपरेट हो जाती सेपरेट पिला माने ये मिसकनसेप्शन रखिबो नहीं जे NaCl रे आयन रूप नथिले यस आयोनिक सॉल्यूट रे कैटायन एंड एनायन आर हेल्ड बाय स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तांको जो एनर्जी होल्ड करी रखिछि दैट एनर्जी लैटिस एनर्जी पानी देले कौन हम पानी देले कौन हम ना उभय भितर कौन हम सेपरेशन स्टार्ट हो कैटायन एंड एनायन आर सेपरेटेड इजीली तापर कौन हुए देखो दिस Na+ कौन करे अट्रैक्ट करे कहा को अट्रैक्ट करे ना पोलर वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करबा स्टार्ट करे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन कौन से पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सो देखो ये सब वाटर मॉलिक्यूल तो ये आसीगला डेल्टा पॉजिटिव ये आसीला डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव ये आसीगला डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव लाइक दिस ये कौन आसीगला ये आसीला डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव सो देखो बर्तमान कौन आसला कैटायन अट्रैक्ट दाउ टू डेस पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पार्ट को ता नेगेटिव एंड भी अट्रैक्ट करबो ये प्रोसेस कहती सॉल्वेशन दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन एंड रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी कौन कहता को सॉल्वेशन एनर्जी हेलाई तो मो कहया कथा आकु हमें कौन कहि परबा आकु आयन को कहि परबा सॉल्वेटेड Na+ लगी Cl- कौन करिवो अपोजिट कथा आसीबो Cl- कौन करिवो वाटर जोटा पॉजिटिव एंड अर्थात हाइड्रोजन पार्ट को अट्रैक्ट करबा स्टार्ट कर दबो हला की तो ये ला डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव हला की तो या सिगला डेल्टा पॉजिटिव या सिगला डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव हला देखो अट्रैक्शन स्टार्ट करबा ये सन्ना देखो तो ये ला सॉल्वेटेड Cl- ये सॉल्वेटेड Na+ सॉल्वेटेड सो वो कहबा कथा सुनि सर कैटायन एंड एनायन अट्रैक्ट द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उभय देखो अट्रैक्ट कर दे हला की तो लिखि दबा कौन कैटायन and anion attract the opposite end of polar solvent molecule that process is called solvation and released energy is called जो एनर्जी बाहर ताको कहती सॉल्वेशन एनर्जी दिस एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी पिला माने देखो जदि गोटे सॉल्यूट लैटिस एनर्जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो गला सॉल्वेशन एनर्जी ठारू बा हाइड्रेशन एनर्जी ठारू ताहले से सॉल्यूट सहज सॉल्युबल करिबो नाही होला कि जदि if the magnitude of lattice energy जे कि कैटायन एनायन को होल्ड करके रखी यदि ग्रेटर देन हो गला इज ग्रेटर देन कहा ठू हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी then that solute is least soluble
एंड वाइस वर्सा मैंने बुझी पार्छ ना छुआ अपोजिट कथा है कि तेणु मो कह कथा अच्छी तो गोटे सल्यूटा गोटे सॉलिड सल्यूटा केते एक्सटेंटली सल्यूबल करिवो सेटा डिटरमाइन करिवो दीटा एनर्जी फैक्टर लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी जदि लैटिस एनर्जी रो मैग्नीट्यूड एक्सेस हो गला का हाइड्रोजन एनर्जी और सल्वेशन एनर्जी नो डाउट दैट सॉलिड इज लीस्ट सॉलिड कहना लैटिस एनर्जी टेंडेंसी कि से दीटा को आयन को कौन कर हर्ट कर रख हाइड्रोजन एनर्जी कौन है आयन सहित होची आयन हवा अपेन हवा दरकार सेपरेट हवा दरकार अच्छा जो हाइड्रोजन एनर्जी रो मैग्नीट्यूड टा मैक्सिमम का लैटिस एनर्जी ताहले से सॉलिड कौन सॉल्युबल हो ताहले से सॉलिड कौन हो सॉल्युबल हो हला कि तो ये गोटे कथा में पढ़िले ताले मो सीधा कथा कहया को कहूची जे जदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट नेचर सिमिलर अछि ताले द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़िबो जा को हमें कहू गला हमर लाइक डीजल लाइक प्रिंसिपल लाइक डीजल लाइक प्रिंसिपल यार परवर्ती कथा सिला जे सेकंड फैक्टर अछि टेंपरेचर बहुत बड़ा कथा टेंपरेचर तो देखो द solubility of solid solute in liquid solvent depends upon the nature of a process whether that process endothermic or exothermic endothermic बा exothermic मन करो जदि endothermic होतबो heat energy required करतबो solubility पाई according to Le-Chatelier's principle if the process of solubility is endothermic then high temperature is favorable for the extent of solubility solubility को increase करबा पाई solubility को accelerate करबा पाई solubility को बढ़ावा पाई सीधा कथा टेम्परेचर ता ये राइज इन टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन आ जदि एक्सोथर्मिक हेतिबो ताले से टेम्परेचर डिक्रीज हवा दरकार जदि तुमे टेम्परेचर राइज करबो ताले सॉल्युबिलिटी एक्सटेंड कमी जीवो कमी जीवो गोटे सिंपल कथा तुमे देखो गोटे बकेट रे पानी नियो पानी रे चूनो दे दियो लाइन एवं से बकेट को तुम हक करके धर तो व्हाट हैपेंस यू फील हॉट हला तुम किसी गरम अनुभव करबो ता माने लाइन जेतले वाटर रे सॉल्युबल होसी नो डाउट प्रोसेस डेस एक्सोथर्मिक आ तुमे जदि एक्सटर्नली टेम्परेचर राइज करबो ताले ताकर सॉल्युबिलिटी कोन जीवो कमी जीवो बरन टेम्परेचर कोन करबा दरकार डिक्रीज करबा दरकार ताले सीधा कथा the extent of solubility of a solid solute in liquid solvent depends upon the nature of a process whether the nature of a process endothermic or exothermic with respect to temperature factor पाई हला कि ताले the effect of temperature on solubility of solid in liquid depends on nature of process whether it may endothermic और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अच्छी किंबा एक्सोथर्मिक तापर डिटरमाइन कर तो एठी एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज गवर्न बाय ली-चाटलर प्रिंसिपल एठी ली-चाटलर प्रिंसिपल सीधा एप्लीकेशन सीधा कथा होछ कोन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक द हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर सॉल्युबिलिटी in case of exothermic the low temperature is favorable for solubility process exothermic अछि by low temperature favorable condition for the solubility process endothermic अछि तो high temperature is the favorable condition for solubility तो ये टेम्परेचर फैक्टर पुणी हमें परवर्ती क्लास रे तो आम पुणी टेम्परेचर रिवाइज करके अदर कॉन्सेप्ट को आम जीवा